अच्छा, तो टू स्टार्ट विथ विल स्टार्ट विथ डिफॉर्मर्स. मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करता हूँ. तो बेसिकली विल स्टार्ट विथ डिफॉर्मर्स. हम इसमें the way I'm planning to cover it is we'll cover what exactly is a deformer. ये तो वेल नोन फैक्ट है, बस एक शुरुआत के लिए वो लेंगे हम. उसके बाद विल बी कवरिंग व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ डिफॉर्मर्स अवेलेबल, व्हाट आर देयर pros, cons, and certain important tips considering each type of deformer. तो deformer के बारे में what I'll be skipping or not doing in my discussion is the defects that are caused because of foam. I think गौरव जी ने defects काफी डिटेल में कवर कर लिए हैं, तो मुझे वापस deformer के defects के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है. फिर भी किसी को अगर कोई क्वेरी होगा तो क्वेश्चन आंसर सेशंस में ले लेंगे. ठीक है ना जी मनीष जी? राइट, आप सेशन पूरा ले लो और कोई भी क्वेश्चन रहेंगे तो वो हम लेंगे आफ्टर 1 आवर. राइट, तो सेशन कंप्लीट होने के बाद. ठीक है. तो आफ्टर deformers I'll be taking anti-settling agents and then the pH stabilizers. I'll talk about them when we come to it. So basically what is a deformer? So deformer or anti-foam agent are chemicals that reduce or hinder the formation of foam in your industrial process liquids. Used in your food industry also. काफी जगह पर यूज होता है, माइनिंग में होता है, पेट्रोलियम में होता है, पेपर इंडस्ट्री में होता है, सभी जगह डिफॉर्मर्स का इस्तेमाल होता है. तो कॉमनली डिफॉर्मर और एंटीफॉर्म एजेंट, ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट टेक्निकली अगर देखा जाए तो डिफॉर्मर्स आर agents that destroy foam after it is generated, and antifoams are surface active agents that prevent foam from formation itself. So ये technical difference है, but the terms usually are interchangeably used. High performance deformer, some people call them as anti-foam agent, and vice versa as well. So what are the most common types of deformers that are available in the market? Deformer सबसे एज ओल्ड अगर ट्रेडिशनल डिफॉर्मर माना जाए तो योर रेगुलर मिनरल ऑयल बेस्ड डिफॉर्मर्स आर द ट्रेडिशनल डिफॉर्मर्स which are still currently used and still very popular. These are, we'll come to the names later on. These are the main category of the deformers that are currently in the market. Then recently we have seen the same mineral oil based deformers are converted into an emulsion form and are provided in an emulsified form. Then we have silicon-based deformer emulsions, siloxane-based deformer emulsions, and siloxane-based deformers which are solvent-soluble. They are not in emulsion form. So they are usually used in your industrial coating. आप जैसे चार्ट में देख रहे होंगे, I have tried to classify them as डेकोरेटिव में कौन से जाते हैं और इंडस्ट्रियल में कौन से जाते हैं. But this is again the classification which you can do according to your convenience. Now इनमें फर्क क्या है? Basically the classification goes either on the basis of what is the medium that is commonly that is used in the manufacture of deformer, or what is the technology that is used in deformer. So mineral oil based deformers, as the name says, is based on your regular mineral oil. आजकल बहुत चर्चित है ये क्रूड ऑयल. तो one of the types of these crude oils is used to make mineral oil based deformers. Now the same deformers are emulsified with the emulsifier in water, and what is formed is the emulsified mineral oil deformers. तो इसमें बेस रहता है water and oil दोनों. Silicon based deformer emulsions, base again is your water. उसमें silicon oil and some activators are used to make it a silicon based deformer. It is in an emulsion form again, white दूध जैसे दिखता है.
silicon based siloxane based defoamers emulsions again are similar, जिसमें silicon oil की जगह a slightly higher version modified silicons are used, that those are called siloxanes. अब आखिरी कैटेगरी है siloxane based defoamers which are solvent soluble. So these are siloxane based and उसमें silicon oil or some solvent is there in which there is no water, there is no emulsification that has been done. It is in pure form. Usually these are high-end defoamers. Very few Indian manufacturers make them. They are also available in actually two strengths or many strengths. There are the diluted versions which are diluted with your solvents like xylene or toluene, or sometimes there are other solvents also used, which are the weaker ones, and there are the purer forms of siloxane based defoamer which are solvent soluble, जिसमें solvent की मात्रा बहुत कम रहती है. They are pure, they are very strong. So usually these are used after dilution. So these are the common types of defoamers. अभी इनको पहचानेंगे कैसे, जानते कैसे हैं? आमतौर से जो defoamers दिखते हैं, what I said, mineral oil based defoamers, regular ones are commonly known as your NXZ या NDW, जो सैपको के हैं, या उसी नाम से अभी बहुत लोग अपने नाम के सामने NXZ या NDW लगा के बेचते हैं. Then there are some people who are selling NXZ in a emulsified form and still call it NXZ, though they are not actually the traditional mineral oil based defoamers. सिलिकॉन बेस्ड डिफॉर्मर इमल्शंस मार्केट में अगर आप ट्रेडर के पास जाएंगे तो आमतौर से आप बोलेंगे कि मुझे भाई वो टेक्सटाइल वाला सिलिकॉन डिफॉर्मर दे देना, क्योंकि सिलिकॉन डिफॉर्मर्स आर very popular and very efficient in your textile industry. They are not recommended in your paint industry, but we'll come to that. What are the advantages of each defoamer and disadvantage? Siloxane based defoamer emulsions are similar to silicon, but as I said earlier, मगर आमतौर से मार्केट में ये जाने जाते हैं एज अ सिलिकॉन डिफॉर्म. तो आप किसी अगर पेंट सप्लायर को सिलिकॉन डिफॉर्मर बोलेंगे तो most probably he should be giving you a siloxane based defoamer, not a silicon based defoamer. Similarly, in the industrial segment also, there are high performance mineral oil based defoamers. Indian manufacturers हैं, limited हैं, multinationally ज़्यादा है, तो usually बाहर वालों के नाम से पहचाने जाते हैं. I will not take any names. Siloxane based defoamers which are solvent soluble again are majority by the multinational brands. Indians are there but limited few. Now going back to which mineral oil, which defoamer has got what advantage. जैसे बताया गया, most commonly used is the mineral oil based defoamer. Mineral oil based defoamer का advantage ये है these are very time tested traditional defoamers, as I have been saying, and the compatibility of the oil with your system is far easily achieved than the regular other ones. So commonly ये use होता है in your water based decorative segment, जो distemper से, emulsion से, your interior, exterior, base coat, top coat, उसमें ये जाता है. So that is the advantage. Sometimes these, and another advantage to say of is they don't cause the disadvantages that your other defoamers can cause. Now emulsified mineral oil defoamers जो है, इनका advantage ये है कि they are already in emulsification form, तो उनका penetration काफी fast होता है. तो they have a advantage over mineral oil based defoamers in the sense their penetration जब उसका fast होता है तो defoaming भी काफी तेजी से होता है. But disadvantage ये भी है कि एक तो उनकी stability, अगर वो emulsion अंदर stable नहीं रहा in your can before you use, if the emulsion has broken, if it has common language में तो खराब हो जाए, तो फिर you might be adding a defoamer which is not very effective. That is one disadvantage. And second disadvantage of your
emulsified mineral oil defoamers is they might not be very efficient in your long run. तो जब एंड यूजर तो पेंटर जब उसमें पानी मिलाता है, जब रोलर से लगाता है, तभी शायद ये डिफॉर्मर्स, ये क्लास के डिफॉर्मर्स उतने काम नहीं कर पाए. This is one disadvantage, one of the disadvantages of the emulsified mineral oil defoamers. Another advantage I would to say is they would be cheaper than your mineral oil based defoamer, obviously because उसमें पानी डाला हुआ है, so the raw material is cheaper, so it's cheaper. Coming to silicone defoamers in emulsion form, as I said, they are mainly used in your textile paints, textile products, not in paint industry. Why they are not used in paint industry? There are two main reasons. One is they can cause recoating issue. एक कोट आपने लगा दिया, दूसरा कोट में एडिशन का इशू हो सकता है. दूसरा, अगर इसका डोज ज्यादा हो गया या ये इमल्शन अगर ब्रेक हो चुका है तो काम नहीं करेगा. एंड द सिलिकॉन इज separated out from your water. Then these can cause your fish eyes or crater. गौरव जी ज्यादा डिफेक्ट गिना सकते हैं, but those sort of issues can come because of the silicon. Siloxane based defoamers, yes, they are a very good class of defoamers. They don't usually cause the problems which silicon based defoamers cause, in the sense of a recoating, and they are better compatible with your paint system, so they are preferred. मगर इनमें भी, since they are in emulsion form, you have to keep checking if the emulsion is intact or has it been broken. Now, talking about the siloxane based defoamer that is solvent soluble, as I said, they are into काफी effective है और direct वैसे के वैसे use करना पड़ता है. But the pure version, in which is in a concentrated form, the dosage of these products becomes very critical, and आपको काफी मशक्कत पहले, either you have to dilute it yourself or you have to be very 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 accurate while adding this high-end siloxane based solvent soluble defoamers. Another reason why you need to be very particular is basically you will be using them in your high-end industrial coating, जहाँ error factor का scope नहीं रहता. The end user is very specific about the product that he desires. So you will have to be very cautious and careful while using these products. Now coming to tips that are the end stage of defoamer, खत्म कर रहा हूँ मैं इसमें. Defoamers को हमेशा divided dose में use करना जरूरी है, recommended है, because to optimize the dose of defoamer, if you use it in divided dose, as basically as the name says, it is a defoamer. So you let the foam create and then you kill it. foam होना मारना है, खोना है, मारना है, इस हिसाब से वो काम करता है. तो in a water based system, आप usually you use about 30% of defoamer in the first stage, along with your wetting agents, dispersing agents, and all other things. Then 30% you add just before adding your emulsions, and the last 35 or 40% जो भी है वो आप एंड स्टेज पे सब डालने के बाद फिर डाल दोगे, ताकि it will kill the foam whatever is left over, and it will also be there for your painter to be utilizing it whenever he is applying the paint or whenever he is diluting the paint while application. So this is the reason why defoamers are recommended in divided doses. Now, what are the other common mistakes or precautions that you need to take while using a defoamer? For your regular mineral oil based defoamers, separation, उसमें क्या है, basically there are some active ingredients which are used suspended in your mineral oil. तो होता क्या है, दुनिया का आप कोई भी mineral oil based defoamer लो, उसमें separation होना ही है. तो आप कोई भी ब्रांड का mineral oil based defoamer लो, उसको कार्बोय को अच्छे से हिला के इस्तेमाल करना है. अच्छे से हिलाना बोला तो to show you an example, it's not, इसको अच्छे से हिलाना नहीं बोलते, या इसको भी नहीं बोलेंगे,
इसको अच्छे से हिलाना बोलेंगे, आप पूरा उसको उल्टा करके सीधा कीजिए 2-3 बार, उसके बाद it will be ideal for use. Otherwise you will be ending up using the top oil and the active part is down, फिर आपको foam का तकलीफ होगा and all other problems are going to crop up. That is one of the reason majority of the mineral oil based defoamers don't provide it in a barrel packing. बहुत बार हमें कस्टमर्स के कॉल्स आते हैं, सर बैरल में कर दो, 2 रुपया सस्ता कर दो। भाई बैरल में नहीं करने का वजह ये है कि आप उसको पलटी नहीं मार पाओगे। So that is the reason mineral oil based defoamers are always available in a 45 kg pack. Now why 45 kg pack? Also as a reason, अगर आप 50 kg भरोगे, 50 kg एक तो these are specific gravity उसका कम रहता है, इसलिए 50 kg अगर भर देंगे तो पूरा रिम तक आ जाएगा, ये एक वजह है। दूसरा वजह है कि we want some space to be there inside the cargo empty, so that when you shake it, that shaking or the mixing becomes more effective because of the space that is. So that is the reason you will get defoamers in 45 kg pack. The other issues about the other defoamers, as I have already mentioned, emulsified mineral oil base, check for the stability of emulsion. Silicon defoamers के problems बता दिए, तो preferably avoid ही करो use करना। आप कितना भी सस्ता पेंट बना रहे हो, अगर silicon based defoamer is a big no, not recommended at all. Siloxane based defoamer, again you have to check for the stability of them. And these I have already told, they're the same. So this is as far as defoamers is concerned. We'll discuss about the details of its defects or something after at the end of the session, in the question and answer session. So now coming to the next topic, that is your anti-settling agent. Now what is an anti-settling agent? Basically anti-settling agent वो चीज है जो आपके पेंट के अंदर के सॉलिड को नीचे बैठने नहीं देता, वो जो डिस्पर्स किया हुआ है उसको डिस्पर्स स्टेज में रखने को मेंटेन करता है. Now that we know what is an anti-settling agent, is anti-settling 100% possible कि कोई क्या आपको ये बता सकता है कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट यूज करो आपका पेंट कभी सेटल होगा ही नहीं? Is that possible? क्या वो बंदा सच बोल रहा है अगर बोल रहा है कि मेरे सेटलिंग एंटी सेटलिंग एजेंट से आपका पेंट कभी सेटल होगा नहीं? नहीं, वो सच नहीं बोल सकता, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि कभी ना कभी तो सॉलिड पार्टिकल्स को नीचे जाना ही है एज लॉन्ग एज यू आर इन द ग्रेविटेशनल फील्ड. अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कोई झुटला नहीं सकता, तो जो भी है उसको नीचे कभी ना कभी तो आना ही है. बाबू तो व्हाट इज द पर्पस? फिर कोई बोलेगा कि भाई फिर डाले क्यों, अगर नीचे बैठना ही है तो डाले क्यों, उसका भरोसा कैसे करें? तो अवर इंटेंशन इज टू प्रिवेंट हार्ड सेटलिंग. नो व्हाट इज हार्ड सेटलिंग? जब भी आप पेंट का डब्बा लेंगे उसके अंदर जब भी अगर आप देखें कि ऊपर क्लियर वार्निश है और नीचे सेटल हो गया है और उसको आप स्क्रू ड्राइवर से हिलाएं और नीचे जब आप फील करेंगे तो इफ यू फील इट्स हार्ड एंड स्क्रू ड्राइवर या जो भी आप रॉड डाल रहे हैं वो पेनिट्रेट करना मुश्किल सेटलिंग. और एज अगेंस्ट उसके अगेंस्ट है टर्मिनोलॉजी इज सॉफ्ट सेटलिंग, कि आप डब्बे को थोड़ा सा शेक कर दे कि भाई बस डब्बे को इतना हिला दे और वो वापस जो नीचे बैठा है वो ऊपर आ जाए, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट सेटलिंग. तो intention of using any anti-settling agent is to prevent hard settling. Soft settling में कोई दिक्कत नहीं है. आइडियल एंटी सेटलिंग हो गया है हम जब बोलते हैं कि भाई अगर पेंट शॉप में दुकान में जब सेल्समैन काउंटर से पेंट का डब्बा निकाल के शेल्फ से निकाल के काउंटर पे जब रखे, उसमें जो मूवमेंट मिल जाए उतने ही मूवमेंट के एनर्जी से अगर वो पेंट आपका वापस डिस्पर्स हो जाता है, तो दैट इज द बेस्ट एंटी सेटलिंग दैट यू हैव अचीव्ड. So that is the intention of a anti-settling agent. Now, anti-settling agent काम कैसे करते हैं? What is the technology that is behind any anti-settling agent? Now, anti-settling agents work in three basic technologies. The first technology that I'll in short tell is by modifying the rheology. इन प्रोडक्ट्स को आप थिकनर करके भी बोलते हैं. तो
usually these are in powder form. I'm talking about the solvent based system. जैसे in water based system actually there is no anti-settling agent. The terminology used is a dispersing agent. तो anti-settling agent जब बात कर रहे हैं तो हम purely solvent based की बात कर रहे हैं. तो जो rheology modifiers है they are you mostly come in powder form or gel form. तो common age old used one is your aluminum straight high gel. ये पाउडर फॉर्म में है. ये पेंट की रियोलॉजी को इम्प्रूव करता है और जिसकी वजह से सेटलिंग स्लो डाउन होता है. सिंपल टर्म्स में अगर एक्सप्लेन किया जाए कि कैसे काम करता है, तो अगर आप 2 ग्लास लेंगे, एक में घी लेके एक में पानी लीजिए और सेम वेट का 2 पत्थर ले लीजिएगा. एक पत्थर को आप घी में डालिए और एक उसी वेट का दूसरा पत्थर पानी में डालिए. तो पानी में जो डालेंगे वो नीचे जल्दी से चला जाएगा और घी वाला नीचे जाने को टाइम लेगा. So basically, it's the same physical chemistry that is used by your rheology modifiers. पेंट को गाढ़ा कर देता है जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स को नीचे जाने को टाइम लगता है और सेटलिंग स्लो हो. These are going to just delay your settling, but in a long run, these will not prevent your hard settling. सेटलिंग का साइकिल जरूर आपका लंबा हो जाएगा मगर हार्ड सेटलिंग को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे. तो एज आई सेड कॉमनली यूज्ड एल्यूमिनियम स्टेरेट, उसके अपने ड्रॉबैक्स भी है, एडवांटेजेस भी है. एडवांटेज इज मेनली इट इज वेरी इजीली अवेलेबल, सबके पास रहता है, आराम से मिल जाता है और रिलेटिवली शायद थोड़ा सस्ता भी हुआ करता था. आजकल I think it has come at par with your other products. Disadvantage इसके बारे में बोलना इससे ज्यादा of the entire segment, your aluminum shades, your oleochemicals, your bentonites, they all have a disadvantage that they will affect the gloss, so they are not very highly recommended for your high gloss enamels. Primers में they are wonderful, they are do a very good job. अगर enamels में इसको इस्तेमाल करते थोड़ा संभल के इस्तेमाल करें. Now एल्यूमिनियम शेड का दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि उसको जेल बना के यूज करना पड़ता है. इफ यू डोंट मेक अ जेल आउट ऑफ एल्यूमिनियम स्ट्रेट, देन इन ऑल प्रोबेबिलिटी यू माइट बी यूजिंग इट एज अ एक्सटेंडर. वो थिकनिंग का काम मामूली करता होगा या नहीं करता होगा, तो उसको जेल बनाना जरूरी है और जेल बनाने के लिए उसको सॉल्वेंट में लेके हीट देना पड़ता है, तभी वो जेल बनता है. There are newer varieties available, they claim, but I have not actually tested their efficacy. जिसमें एल्यूमिनियम प्लेट को हीट नहीं करना पड़ता, ऐसे ही जेल हो जाता है बोलते हैं. बट the commonly used ones are the ones that need to be heated, and heating a solvent is a risky process, इसलिए that is a major disadvantage of using aluminum straight. Coming to the next, oleochemicals. These are basically vegetable oil based products. Common नाम अगर बोलूं तो फाइन ऑर्गेनिक्स का फाइनोलॉजी है, हमारे पास भी है ऐसा प्रोडक्ट. तो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं. these are oleochemicals. These have एडवांटेज और एल्यूमिनियम स्ट्रेट के इनको जेल नहीं करना पड़ता. बाकी डिसएडवांटेज इनसे भी ग्लॉस में फर्क पड़ने वाला है, वो है ही. बाकी सब वैसे का वैसा है, बट इनको जेल नहीं करना पड़ता, प्रोवाइडेड यू हैव अ गुड प्रोडक्ट विद गुड मेल्टिंग पॉइंट इन इट. तो वो अच्छा है. Bentonites are the latest versions in this category. They are good products, no doubt. बहुत अच्छा काम करते हैं, but in a enamel they also will can affect your gloss, so to be used with caution. उसमें भी बहुत प्रोडक्ट्स अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग ग्रेड्स हैं. तो फाइंड आउट फ्रॉम योर सप्लायर विच इज सुटेबल फॉर यू एंड देन बाय अकॉर्डिंगली. इनेमल्स में भी यूज हो सकता है, नहीं बोल रहा हूँ, मगर संभल के यूज कीजिएगा. बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग. So this covers the rheology modifiers or thickeners part of your anti-settling agent. Purpose of these are again two. एक तो anti-settling है, दूसरा पर्पस उनका ये है कि they can provide prevent sagging or that sort of dripping
of the paint. तो ये तकलीफें इनसे कम होती है. They give a false body. Coming to the next mechanism is the electrostatic stabilization, that is the anionic deformers. ये क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक आयनिक चार्ज देते हैं टू ईच एंड एवरी फ्लोटिंग पार्टिकल. अब वो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल्सिव प्रॉपर्टीज की वजह से थोड़ा बहुत ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जा रहा है. रिपल्सिव प्रॉपर्टीज की वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आने को टाइम लेते हैं. आ भी गए तो बहुत ज्यादा जोर से चिपकते नहीं है. And this is the mechanism by which it slows down your settling, prevents settling, and prevents hard settling to be the fact, to say the fact. There is a similar technology that is called steric hindrance. Most of these products are non-ionic. These give a steric charge to each and every particle, and because of this steric charge, जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो they bump into each other and bounce back. एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कोई ट्रेन अगर लास्ट स्टेशन पे आए तो प्लेटफॉर्म पे एक स्प्रिंग जैसा लगा रहता है जहाँ वो इंजन आके लगता है एंड देन इट देयर इज अ स्प्रिंग एक्शन एंड इट बाउंसेस बैक. तो इस तरह का थोड़ा बहुत, इट्स अ वेरी क्रूड एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन, बट yes, it's a similar thing which the steric energy that is provided by the non-ionic products causes this bouncing back action, जिसकी वजह से particles एक दूसरे को चिपकते नहीं. Now these two are responsible for your soft settling. ये इनकी वजह से particles एक दूसरे को चिपके नहीं है, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाता है तो वापस टर्नल हो जाते हैं, वापस ऊपर चले जाते हैं. तो these are the products. Now commonly available anionic products electrostatic stabilization से जो काम करते हैं, most of your liquid anti settling agent जैसे Nilset 117 हुआ, एंटीसेट बोलते हैं बहुत लोग, फाइनसेट 35 बोलते हैं, ऐसे इसी नाम से काफी प्रोडक्ट्स सिमिलर नेम्स से हैं. तो these are all working on your anionic theory. There are very few which anti-settling agents which work on your steric hindrance theory, but they are there. और जैसे हमने एक प्रोडक्ट बनाया which is using both the technologies, so it is the best of both. तो वैसे भी प्रोडक्ट्स है मार्केट में which are using both the technologies. Now this is a diagrammatic explanation of your electrostatic stabilization and the steric stabilization. Basically electrostatic stabilization ये negative ions आपके हर एक particle को surround किए हुए हैं और वो negative repulsive properties की वजह से दोनों particle are far off. Similarly, these are the steric energy representation. ये बहुत diagrammatic है actually. The funny part is this looks like a coronavirus. So social distancing maintain करता है and this is the way the steric hindrance happens. So I think this does with your anti-settling properties agent के बारे में जो basic knowledge है. Yeah, one more thing that I would like to highlight is whenever you are selecting an anti-settling agent, ideally I will recommend a combination of your rheology modifier and your liquid anti-settling agent. Whichever chemistry you use, a combination of both will perform the best. And while selecting any anti-settling agent, लोग बाग बहुत ध्यान नहीं देते इस प्रोडक्ट के बारे में. बहुत हाईटेक प्रोडक्ट नहीं माना जाता, बट इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. क्योंकि पेंट का डब्बा जब खुलता है और सेटलिंग नहीं हो, so that is the first impression your customer or the paint shop fellow has about your this thing. So it is a very important, very significant property that you need to take care of. तो इसको सिलेक्ट करते समय आप सिर्फ दाम मत देखिए, डोज भी देखिए, उसका परफॉर्मेंस देखिए, एंड देन यू डिसाइड what is suitable for your system, for your economics. Of course, they are a necessary part of formulation, but yes. So coming to the next topic, that is pH stabilizers. What are pH stabilizers?
A pH stabilizer is a chemical that maintains the pH of a system at a desired level. इसको ये एकदम सिंपल भाषा में इसका डेफिनेशन है. Now pH stabilizers, I'm not talking about our industry in particular, but in general you have pH stabilizers that will maintain your acidic pH. There are pH stabilizers that will maintain your basic or alkaline pH. पेंट में यूज होने वाले मोस्टली सब बेसिक या अल्कलाइन पीएच मेंटेन करने वाले ही रहते हैं. वही आमतौर से जाने जाते हैं एंड वही कॉमनली यूज होते हैं. Now what is the ideal pH that is to be maintained for your paint? वो आपका सॉल्वेंट सिस्टम हो या वाटर सिस्टम हो, दोनों सिस्टम में ही 8 से 9 के बीच में पीएच मेंटेन करना जरूरी है फॉर द हेल्थ ऑफ योर पेंट, फॉर आइडियल रिजल्ट्स. पीएच अगर 8 से 9 के बीच में मेंटेन कर रहे हैं आप, तो दैट इज द बेस्ट पीएच दैट यू कैन मेंटेन. अभी ये स्लाइड पे अगर आप देखेंगे तो I have mentioned pH converter versus pH stabilizer. Basically, pH converter is a terminology which I don't think is very adopted this terminology. तो इनमें फर्क क्या है? pH converter basically are the chemicals that will that are used to convert your pH to alkaline level, so that some of your products activation happens. अब एग्जांपल दे तो आप जब HECA CMC को जेल बनाते हैं तो थोड़ा अमोनिया डालते हैं, तो अमोनिया हुआ पीएच कन्वर्टर. जब आप एक्रेलिक थिकनर डालते हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए अमोनिया डालते हैं, तो वो अमोनिया हुआ पीएच कन्वर्टर. तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट, अमोनिया ही नहीं बाकी भी प्रोडक्ट्स है मार्केट में, यूज करते हैं टू एक्टिवेट अ सर्टेन प्रोडक्ट, और तो उसको पीएच कन्वर्टर बोलते हैं. एंड as against what is a pH stabilizer then? pH stabilizer is a product that is not used to convert this, but used at the end stage of your paint manufacture, so that during storage, कि आपका पेंट बंद तो गया जनवरी में, अगर सितंबर अक्टूबर तक अगर उसको पेंट शॉप में टिकाना है, स्टेबल रखना है, तो तभी जो पीएच का मेंटेनेंस करेगा तो उसको पीएच स्टेबलाइजर बोलते हैं. दिस इज द टर्मिनोलॉजी दैट वी आर यूजिंग. आमतौर से पीपल misunderstand a pH converter as a pH stabilizer, or people start using pH stabilizer as a pH converter. तो ऐसा ना करें. तो this is the difference between a pH converter and a stabilizer. Now इसकी जरूरत क्या है? pH अनस्टेबल क्यों है? हमने तो बना दिया, उसमें कुछ डाला नहीं, कुछ बदली नहीं किया, तो why does a pH of your paint change? Why does this happen? तो इसकी वजह है, I will try to explain in this solvent, in this slide. In a solvent based system, pH change होता है आमतौर से because of your resin. आपके अल्किड में या आपके CNSL में, खास तौर से CNSL में एसिड वैल्यू काफी ज्यादा रहता है, रेजिन्स में कम रहता है, अल्किड रेजिन्स में कम रहता है. आइडियली इट शुड बी बिलो 20, देन इट्स स्टेबल. 20 से ज्यादा होगा अगर एसिड वैल्यू तो इट्स नॉट गुड. एंड CNSL रेजिन में तो ज्यादा होता ही है. there's free acid also that is there. So this acid gets released over a period of time. धीरे 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 थोड़ा रिलीज होते होते वो पीएच को चेंज करने लगता है. This over a period of time धीरे धीरे जो है वो तेज हो जाता है in presence of water. और पानी तो आजकल सभी डाल रहे हैं, especially in primers and enamels. पानी डालते ही that acid release gets accelerated and it comes out fast. So that is the reason, one of the reasons why your pH changes in your solvent-based system. Another most common reason is your pigments also have some pent-up acid value. ये भी थोड़ा बहुत रिलीज होता है and they also contribute to your change in pH. There are many other factors which can contribute, but they won't cause that much of a hassle, or they are रुपए में they might contribute to 2 पैसा 3 पैसा. So I have not tried to cover them up, but many of the additives also can cause
pH to rise, to fall rather. Sorry, acidic होना है नहीं, pH fall. In water-based system, major contributors can be. बहुत लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि मैं डिस्टिल्ड वाटर यूज कर रहा हूँ. डिस्टिल्ड वाटर इज आइडियल, बेस्ट. लोग इंजेक्शंस देते हैं उससे, डॉक्टर लोग डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं. तो ये धारणा है जो लोगों की, ये गलत है. बेसिकली डिस्टिल्ड वाटर यानी क्या? आप पानी को उबाल रहे हैं एंड उसका स्टीम को कंडेंस करके डिस्टिल करके नीचे कलेक्ट करें, दैट इज योर डिस्टिल्ड वाटर. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन you condense back the water into your distillery is, along with water, your carbon dioxide dissolves in that. Because of carbon dioxide, it turns into carbonic acid, and your distilled water, अगर आपका सच्ची मायने में distilled water है, तो it becomes acidic in nature. So distilled water use करने से आपका pH में गड़बड़ हो सकता है, हो रहा होगा, तो वो तकलीफ दे सकता है. जैसे मैंने सॉल्वेंट बेस में बोला, इफ यू आर यूजिंग सर्टेन पिगमेंट्स, दे कैन कॉज पीएच इंस्टेबिलिटी. बहुत ज़्यादा नहीं होता बिकॉज यूजुअली पिगमेंट पेस्ट यूज करते हैं, तो उसमें इतना तकलीफ नहीं आता है. एक्रेलिक, योर बाइंडर्स आर मेड आउट ऑफ योर एक्रेलिक एसिड, तो इसमें भी थोड़ा बहुत एसिड वैल्यू हो सकता है. देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज आल्सो व्हिच कैन कॉज वेरिएशन इन योर पीएच. So these are the reasons why your pH might change, and that is the reason why you need to maintain your pH. अब pH change हो जाए तो क्या तकलीफ होती? What are the problems that can be happening because of the change in your pH? ये chart में I've tried to identify the most common problems. There are many more, obviously, but they might not be very significant. So in solvent-based system, the effects of unstable pH can be seen as gassing. ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है गैसिंग का. आपके, इफ इट्स नॉट अ सीवियर प्रॉब्लम, आपके डब्बे के रिम में से, नीचे के रिम से या साइड के जॉइंट से योर रेजिन स्टार्ट ओजिंग आउट. दैट इज बिकॉज ऑफ द गैसिंग एंड द प्रेशर बिल्डिंग अप इन योर कैन. कई बार तो ऐसे भी कंप्लेंट्स आते हैं कि आपके ढक्कन उड़ रहे हैं एंड इट्स लाइक एक्सप्लोडिंग इन योर डीलर्स गो डाउन, इन योर स्टॉकिट्स गो डाउन. तो ये तकलीफ हो सकती है. होता 4-5 डब्बे में ही है, मगर आपका पूरा लॉट वापस आता है. तो गैसिंग का तकलीफ इज वन ऑफ द मेजर साइड इफेक्ट्स ऑफ योर अनस्टेबल पीएच या एसिडिक पीएच. सेकेंड थिंग इज फेज सेपरेशन. आपका व्हीकल सेपरेशन जो बोलते हैं, आपका वार्निश जैसा क्लियर अल्किड एंड सॉल्वेंट ऊपर आ जाता है और पिगमेंट सेटल डाउन. दैट कैन हैपन. सिमिलर थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स, इफ वी से योर पिगमेंट सेपरेशन एंड सेटलिंग. आपका फेस सेपरेट हो जाए तो आपके पिगमेंट नीचे बैठ जाएंगे, ये तकलीफ हो सकती है. इन एसिडिक पीएच, योर वेटिंग एजेंट and anti-settling agent which you have used might not be performing best. So wetting agent अगर काम नहीं कर रहा है तो आपका शेड स्ट्रेंथ में फर्क आ सकता है रीएग्लोमरेशन ऑफ पिगमेंट से. अगर एंटी सेटलिंग एजेंट काम करना छोड़ दे या कम कर दे तो हार्ड सेटलिंग का तकलीफ हो सकता है. वाटर सेपरेशन कैन हैपन. The emulsifier or whatever additive we have used might not function in your acidic pH. तो पानी जो पकड़ के रखा है वो छोड़ दे, ये तकलीफ हो सकती है. As your pH turns acidic, your viscosity will drop. Your polymer chain in your alkyd can get disturbed and your viscosity can drop. ये तकलीफ है सॉल्वेंट बेस में कॉमनली देखी जाती है बिकॉज ऑफ योर सिंपल negligence of your pH maintenance. वाटर बेस में वापस ऊपर पानी आ जाता है, नीचे से बैठा है, ऊपर के 2 इंच या 1 इंच पानी आ रहा है, ये तकलीफ दिखती है. पिगमेंट बैठ जाता है, शेड वेरिएशन, देयर इज अ सिमिलर थिंग. एक्सटेंडर्स जब अच्छे से नहीं वेट हुए हैं तो चॉकिंग हो सकता है. बाइंडर पीएच अगर मेंटेन नहीं हुआ हो तो उसका इमल्शन स्टेबिलिटी खतरे में है एंड बाइंडर फेलियर कैन हैपन. So these are the major effects that can be prevented if you maintain your pH.
रिसेंटली मतलब पिछले 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ मार्केट में पीएच स्टेबिलिटी के बारे में अवेयरनेस काफ़ी आ गई है। उससे पहले ये क्या चीज़ है, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं, ऐसे एटीट्यूड हुआ करता था। तो थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड, वी आर इम्प्रूविंग। Now, how will you select a pH stabilizer? What is a good pH stabilizer? A good pH stabilizer, as it is mentioned here, it, it should function over a period of time. अभी अगर आपने, जैसे मैंने पहले बताया, जनवरी में यूज किया है, पेंट बना है और वो बिकने वाला है सितंबर या अक्टूबर में, तब तक वो पहले आपके शॉप गोडाउन में रहेगा, फिर स्टॉकिस्ट के, फिर रिटेलर के शेल्फ में, फिर वो बिकते बिकते अगर 8-9 महीने लग जा सकते हैं, दैट इज वेरी पॉसिबल। तो if your pH stabilizer has stopped working after say 3 months or after 2 months, then बाकी का पीरियड तो आपका पेंट राम भरोसे है, उसको कौन संभाल रहा है? तो इट शुड बी वर्किंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, साल भर तो काम करना चाहिए। 8 महीना से साल भर की बात ही करते हैं हम, क्योंकि within that time whatever acid that is pent up and left in your this thing has to be released. अगर साल भर के बाद भी आपका pH unstable हो रहा है, तो you should seriously look at what raw materials you are using. तो उसमें एसिड साल भर रिलीज हो रहा है, साल भर के बाद भी अगर रिलीज हो रहा है, तो दैट इज नॉट आइडियल वे। तो अगर साल भर भी आपके पीएच स्टेबलाइजर ने आपके पेंट को संभाल लिया तो काफी है। तो इट शुड बी एबल टू फंक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 8 to 12 months इज आइडियल टाइम कि वो काम करे, तो काफी है। नाउ there are pH stabilizers which can which have a different strength. Some pH stabilizers can neutralize a certain amount of acid, and certain pH stabilizers can neutralize a higher amount of, ये सब actually molecular reaction और उसमें जाता है ज़्यादा. I will not go into details, but the strength of pH stabilizer is what I want to say. They should be able to neutralize maximum acidic molecules. जो हाइड्रोजन आयन से और whatever the acidic ions are there, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से pH stabilizer से मिनिमम क्वांटिटी में यूज करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, that is ideal. Now third and very important requirement is, अब वो pH stabilizer आपने जनवरी में डाल दिया, अब उसकी रिक्वायरमेंट कब आएगी? इट विल स्टे, इट हैज टू स्टे इनर्ट और inactive in your paint till the acid gets released, which can happen maybe in March, maybe in April, maybe in May. तो तब तक वो pH stabilizer आपके पेंट में वेला ही पड़ा हुआ, and it should not cause problems in your paint when it has not been used. There are certain chemicals which people consider them as pH stabilizer. उनको pH stabilizer बोलना है, actually pH stabilizer का insult होगा, but I have to tell about them because people are considering them and labeling them as pH stabilizer. For example, caustic soda, लोग इसको यूज कर लेते, भाई caustic soda डाल दो इसको, वो न्यूट्रलाइज करते रहेगा जब ये एसिड होगा। अगर वो न्यूट्रलाइज तब करेगा जब वो खाली बैठेगा and it will not be active. Your caustic soda is going to affect your shade strength, तो आपके pigment strength को खा जाएगा. Caustic soda will cause washability issues, और even your liquor ammonia अगर ज्यादा यूज करें कि भाई वो सस्ता आइटम है, 25 रुपए किलो आता है, उसको ही ज्यादा डाल दो बाद में, तो दैट इज, एक तो योर लिक्विड अमोनिया इज हाईली इवोपरेबल। आपका अगर आपने ध्यान दिया होगा कि ओल्ड स्टॉक लिक्विड अमोनिया का वो आपके कैन में यूज करने से पहले ही काम करना बंद किया, तो पेंट में डालने के बाद वो कब काम करना बंद कर दे इसका गारंटी नहीं, एंड दे हैव गॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ कॉजिंग फ्लैश रस्ट। ये एक तकलीफ है जिसकी वजह से अमोनिया कैन नॉट बी यूज्ड और शुड नॉट बी यूज्ड एज अ पीएच स्टेबलाइजर। मामूली मात्रा में इन योर वाटर बेस्ड पेंट एज अ एक्टिवेटर
a pH converter, it can be used, fine, not an issue. But as a pH stabilizer, use of ammonia is a big no. Now, what are the other prerequisites of your pH stabilizer? अभी आपने डाल तो दिया pH stabilizer, उसका functioning over the time देख लिया, उसका maximum acid neutralization properties देख लिया, वो जब तक यूज होता है तब तक न्यूट्रल है, कोई पेंट को दिक्कत नहीं दे रहा है, ये भी आपने देख लिया. अब आपको देखना है जब एसिड रिलीज हो और वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के बाद बेसिकली व्हेनेवर यू रिएक्ट अल्कली विद एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो NaCl होता है, तो देयर इज ऑलवेज अ सॉल्ट दैट इज जनरेटेड. नाउ व्हाट यू हैव टू पे अटेंशन इज whenever you are using the pH stabilizer, न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो सॉल्ट्स बन रहे हैं, आर दे अफेक्टिंग योर पेट? अब आपने जनवरी में pH स्टेबलाइजर यूज कर लिया, पहले तीनों पॉइंट देख लिया, मई तक तो वो ठीक है. मई में एसिड रिलीज हुआ, उसको न्यूट्रलाइज करने के बाद जो सॉल्ट है, if that is going to affect your paint properties, your film properties, then this is not an ideal pH stabilizer. You'll have to be careful about that as well. So there are some salts that will chelate your wetting agent or dispersing agent and render them ineffective. These salts can also cause your emulsion instability. There are many things these salts can cause. Many film surface defects also can be happening because of these salts. I'll not go into those details. So these are the ideal requisites, 4 requisites of any pH stabilizer. अब मार्केट में pH स्टेबलाइजर्स काफ़ी अवेलेबल हैं, राइट फ्रॉम 150 rupees. I'm not talking about ammonia or caustic. I'm talking about standard or decent pH stabilizers to good pH stabilizers. ये 150 रुपए से 500 रुपए तक अवेलेबल हैं. One thing I would like you to two things rather check before selecting a pH stabilizer is has it got a stability in any temperature? ये देखिए आप पहला चीज. उसके लिए आप pH स्टेबलाइजर एक 50 ग्राम को डीप फ्रीजर में रख लीजिए. अगर वो फ्रीज हो जाता है तो it doesn't have a very good stability. अगर फ्रीज नहीं होता तो that is a good pH stabilizer. वो stability, क्योंकि as I said, you are using it over a period of time and your paint is going over a period of time. के seasons change हो रहे हैं and geography भी change हो रहा है. भाई कोई बंदा पेंट बना रहा है राजस्थान में, बिक रहा है कहीं और ठंड जगह पर, या बन रहा है गर्म जगह पर, बम्बई में बन के जा रहा है कहीं और ठंडी जगह पर. So those things are beyond your control. So see to it that whatever pH stabilizer you are shortlisting has got a stability of temperature. तो उसको फ्रिज में रख के देखिए. The second common test which I am asking you to do is, आप pH stabilizer को एक डिश में डाल के धूप में रख दीजिएगा. If अगर उसके साइड में एजेस पे नमक जैसे आप समुद्र का पानी अगर डिश में रखें तो साइड में पहले नमक सेटल होने लगता है. अगर ऐसे दिखने लगे तो दैट pH stabilizer whoever is providing you is not ideal. Most probably उसमें either caustic potash या caustic soda का mixture है to get the cost down, and that is going to cause problem. तो ये दो चीजें सिंपल सी टेस्ट है, आप देख लीजिएगा and then you decide on your pH stabilizer. So basically शैम्पेन में सोडा में गैसिंग तो बहुत बढ़िया रहता है, मगर पेंट में नहीं. गैसिंग इज नॉट ऑलवेज अ सेलिब्रेशन. स्टेबलाइज योर pH and save yourself. pH stabilizer is something like I wouldn't exactly call it a insurance, but sort of insurance के आगे तकलीफ नहीं हो. It's more of a preventive additive that you need to use. And give it its due importance and don't miss using it.
I think with this, I'm at the end of the topics I have shortlisted. We can now, Manish ji, क्वेश्चन आंसर्स के लिए शुरू कर सकते हैं. राइट सर, क्वेश्चन आंसर्स के लिए स्टार्ट करते हैं. अभी जिसका भी कोई क्वेश्चन हो वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं. इज मिरन फोड़ा, यू वांट टू आस्क समथिंग? मिरन जी बोलिए सर. मेरा एक क्वेश्चन है, कैन वी यूज एनायोनिक और एनायोनिक एंटीसाइक्लिक एजेंट इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम स्टेरेट? नमस्कार मिरन जी. Yes, you can use anionic or non-anionic, मतलब जो liquid form में आप बोल रहे हैं, you surely can use, but for the best performance, it is better to use both. हाँ, जैसे आप enamels बना की बात अगर कर रहे हैं, तो वहाँ एक तो pigments का dosage उतना नहीं रहता, तो आमतौर से enamels में एंटी सेटलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती. ओनली व्हेन यू आर यूजिंग हेवी पिगमेंट्स लाइक क्रोम्स और लेड बेस्ड पिगमेंट्स होंगे तो आपको एंटी सेटलिंग की जरूरत पड़ती है, और वहाँ ग्लॉस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट क्राइटेरिया. तो यू कैन अवॉइड यूजिंग योर थिकनर्स एंड बी हैप्पी विथ योर एंटी सेटलिंग. इन योर प्राइमर्स आई विल रिकमेंड इसको यूज कीजिए जरूर. Don't avoid using thickener. Combination of both works best. Okay, thank you sir. Yes sir. अभी और किसी का गोहोई पेंट से है सर, वो पूछना चाहते हैं. गोहोई पेंट से. नमस्कार, कहिए सर. हाँ सर नमस्कार. हाँ जी बोलिए. सर ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये एल्यूमिनियम स्टीरिएट अगर अभी जैसे यूज करेगा, हाँ, इसको क्या जेल बनाने के लिए कौन सा सॉल्वेंट हमको यूज करना चाहिए और कितने टेम्परेचर पे इसका जेल बन सकता है? टेम्परेचर यूजुअली 50-55 डिग्रीज 60 डिग्रीज मैक्सिमम पे जेल बन जाता है. एंड यू कैन यूज योर व्हाटएवर सॉल्वेंट यू आर यूजिंग. योर एमटीओ इज गुड फॉर मेकिंग अ जेल. और कितना परसेंट के जेल बनानी होगी इसकी? आप अपने कन्वीनियंस से बना सकते हैं. डोजेज ऑफ एल्यूमिनियम स्टीरेट इज 0.8 to 1% इन योर बैच साइज. 0.8 to 1%. हाँ जी. और जेली भी 1% की बनेगी? जेली आप कितने भी परसेंट की बनाइए. कंफर्टेबली क्या रेशियो आएगा? यूजुअली 1:10 10% की जेली बनाते हैं. 10%, राइट? हाँ जी. राइट सर, ओके, थैंक यू. There are many paint manufacturers here. Somebody else can also throw light. कि practically Please, कौन yes, क्या please, ज़्यादा please. अच्छे से कर रहा है. Yes, please, if anyone can. हरि प्रताप सिंह जी. हेलो जी बताएं. हाँ जी नमस्कार. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून, बोलिए. सर मैं हरि प्रताप सिंह बोल रहा हूँ नार इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से. सर मेरा ये था, जैसे अपना डीएम यूज करते हैं, इसके वो डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, उसमें डीएम भी यूज करते हैं. DM is ideal. Distilled and DM are two different things. As I said, distilled water distillation से किया रहता है. DM is demineralized. तो demineralized is ideal. लोग RO और DM में भी कंफ्यूज हो जाते हैं. RO is something more than ideal. जरूरत नहीं है, उसमें खर्चा भी ज्यादा आता है मेंटेनेंस का, और पानी का भी वेस्टेज बहुत रहता है. तो RO is not required, so not ideal. DM परफेक्ट सिस्टम है फॉर यूज इन योर पेंट सिस्टम. आपका हार्डनेस निकल जाता है और खर्चा भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं है. मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी इज इजी. तो सर दूसरा क्वेश्चन ये है, जो पीएच अपना ड्रॉप और इंक्रीज भी होती है क्या सर? इंक्रीज नहीं होनी नहीं चाहिए. वैसे ड्रॉप होती है. ड्रॉप होती है. अल्कलाइन तो आपने पहले से ही किया हुआ है, एसिडिक में कन्वर्ट होने लग जाती है. ओके ओके. जैसे आप सीएनएसएल के लिए कह रहे थे कि सीएनएसएल में गैसेस निकलती है अमूमन, तो उसमें ये जो AMP95 या व्हाटएवर पीएच स्टेबलाइजर ये डालना जरूरी है. हाँ, बेसिकली CNSL का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखेंगे
तो उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा यूज होती है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दैट एसिड अवे फ्रॉम योर CNSL रेजिन। लिक्विड में तो मेहनत मशक्कत कर भी लेते हैं लोग निकालने के लिए उसको। CNSL चीपर आइटम है, उतनी मेहनत करते नहीं है मैन्युफैक्चरर्स भी, कर भी ले तो भी मुश्किल काम है, तो उसमें तो आपको pH स्टेबलाइजर इज मैंडेटरी। हाँ, AMP as you said is a very good pH stabilizer, but it is a very expensive one for this purpose. You can use there are many other versions which are much cheaper and equally good as far as pH stabilization is concerned. जब आप AMP का कॉस्ट होगा 450-500 के आसपास, आपको 200-250 के बीच में भी अच्छा प्रोडक्ट जो काम करे मिल जाएगा। Thank you. Sir, I have got a question on the defoamer, sir. Yes, sir. We are given Sir, to understand sir, when can we. My name is Rangnath. I'm calling Rangnath from हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Rangnath Hey. from Bangalore, Hallmark Bangalore. Product and Decorative Coatings. Hey sir, यहाँ किधर है? Fine, thank you very much, sir. Sir, Okay. I was told when you use mineral oil defoamer in a high-end paint, this washability, that means dirt pickup resistance will be there when you use mineral oil defoamer. Mineral oil based defoamer will Have a give a dirt. Will have a dirt pickup problem will be there, because the defoamer will come to the surface of the product, and since the surface tries to become oily, then it will attract dust. So in high-end products, what is the, for example, we have this products like Ultima Protect, like that. So I don't think they will use any mineral oil based defoamer there. They do use Ultima or whichever high-end product. Basically, the dose of your defoamer is very low. 0.2 to 0.3. 0.2 to 0.3. Yeah. So at this dose, it should not cause absolutely any problem of dirt pickup. As I said, mineral oil defoamers, mineral oil itself is very easily compatible with your water-based system. Yeah. The fact that it is emulsified and provided proves that mineral oil can be emulsified with your water. Okay. So in your water-based system, the mineral oil gets emulsified and it goes through your system. It doesn't come to the surface. I don't know. Have you actually faced this sort of problem? No. In one of the other this thing when we had from BYK, they were telling that this issue will come up. No, it should not. Yes, if your mineral oil based defoamer that is exactly what I also told. Since the dosage of the defoamer what we are using is and that too we are splitting it. We are doing, as you rightly put it, we'll have something in grinding and something before emulsion adding, and finally in the let down. Exactly. But this is what they said. We wanted. I just wanted one of your suggestions. Just like how we take in my medicine, how we take a second opinion. I wanted an opinion from your side. And what is the best defoamer you recommend for high-end products? You may have this microfoam coming up in the system, in things like that. You're talking about water-based. You're talking about water-based. Yeah, water-based system. Generally, we are facing this microfoam system in this direct-to-metal coatings. Okay, DTMs. DTMs. Water-based DTMs. Yes, water-based DTMs. You must be using the dip method for application. No, the regular spray or brush application. My microfoam, we are facing some microfoams. You can try the high-end mineral oil-based defoamers. Those are there. Yeah. Because they were recommending siloxane-based defoamer. I wanted your suggestion on the siloxane. That's what. If the high-end mineral oil-based defoamers don't work, then siloxane-based defoamers, that too not in emulsion form. I would recommend use of the purer one, the solvent soluble. Oh. In that, the dilute version can be used at a normal dose. It should serve your purpose.
Basically, because this is a DTM, I don't think there is a recoating done in this sort of application. No recoating. It's a single coat. Yes, yes, so, yes. So you are pretty much safe using a siloxane-based defoamer also, but they're expensive. You'll get a high-end mineral oil defoamer for around 300 rupees, and those will be costing you around 800-900 bucks. So you look at the economics and then decide. Can you please throw some light on the active contents in the defoamer? How we are supposed to consider the active contents? Generally, defoamers are the costing is based on the active contents which are there in the defoamers. Can you throw some light on that? Active content. Usually, this is a term that is used in your siloxane-based defoamers. That is because you have this silica also in defoamer. I think you know that. Right. Fumed silica is there. Yeah, which will burst the foam. Right. The efficacy of the defoamer is measured in terms of the active contents of the material which is there in the defoamer. Right. Can you throw some light basically, on? When you're talking about active content, this is not a terminology that is used in your mineral oil-based defoamers. Okay. Mineral oil-based defoamers, these active contents, basically what is done is you activate the entire oil content. The oil 100% is activated with those active content, and they cause the defoaming. So your mineral oil-based defoamers are 100% active. Yeah, and when you're talking about silicon-based defoamers or siloxane-based defoamers, there the major content is your water, emulsifier, and your active silicon molecules. Okay. It can be silica, it can be silicon oil modified, and all those things. So there, the active content, yes, does matter. Sometimes people tell you the solid content and not the active content. Just for example, if I have to tell you, if you are using a 10%, if you don't mistake, sir, please try to take some names, sir, so that it will be easy for us. See, there are a lot of defoamers available from BYK is there. We have got from Dow. We have got from BASF. No. Why I am asking you is so that we will be able to make a tabulation and just see. We can make a tabulation of what are the best features, how we have to choose. See, this is the intricate thing. Ranganath sir. Ranganath sir, can I interrupt? Can I interrupt here, sir? Yeah, please. This is Suresh Babu from Sai Company. Sir, Dr. Gururaj is a manufacturer of Chennai, sir. Thank you, sir. I'm fine, sir. Yes, Suresh Babu, boliye. Sir. Dr. Gururaj is a manufacturer of his own brand of. I'm aware of that. Yeah. So I don't think he might be suggesting for some other company's products. I don't think he will be comfortable if we ask him like that, sir. That is the thing I just want. Taking names is going to be a bit of a problem, but I can surely give you examples of the facts that are there. So when you're talking about silicon defoamers, the active content comes. Just for example, without taking any name, if somebody is telling you that my silicon defoamer is 10% solids, so the 10% solid actually doesn't mean 10% active matter. Hello. हाँ जी बोलिए सर प्लीज. तो 10% सॉलिड्स जब बताते हैं तो उसमें से एक्चुअली 5 to 6% तो इमल्सिफायर रहते हैं और एक्टिव सिलिकॉन 3 to 4% ही रहता है जब वो 10% की बात कर रहे हैं सॉलिड. तो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट कि वो एक्टिव कंटेंट बोल रहा है या सॉलिड्स बता रहा है. अब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट योर high end industrial siloxane based solvent soluble products, तो very common example जो नाम बोलने की इन्होंने सजेशन दी है तो your Dapro 5800 and Dapro 6800 are same products. Dapro 5800 is a diluted version and 6800 is a purer version जिसमें solvent नहीं है.
उतना ही फर्क है दोनों में. तो they do mention what is the active content percentage in that, and they're pretty reliable. मतलब आपको अगर कोई मैन्युफैक्चरर बता रहा है कि मेरे इसमें इतना एक्टिव कंटेंट है, तो there I don't see any reason not to believe that person. Thank you very much, sir. Thank you very much. सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें सर. हाँ जी लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन जयेश पारिक जी फ्रॉम HCCI. जयेश पारिक. गुरुराज जी नमस्कार. मैं जयेश पारिक बॉम्बे से बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान करंट केमिकल इंडस्ट्री. हाँ जी. एक्सटीरियर पेंट बनाते हैं एक्रेलिक बेस. तो आपने जो बताया कि सिलिकॉन बेस्ड डिफॉर्मर यूज करने से रीकोटिंग में प्रॉब्लम आती है. तो जो टेक्सटाइल ग्रेड वाला रहता है वो 60-70 रुपए वाला प्रोडक्ट रहता है यूजुअली. तो सिलिकॉन बेस्ड डिफॉर्मर इज गुड फॉर द वाटर रिपेलेंसी, यानी वाटर रिपेलेंट के लिए अच्छा काम करेगा वो एक्सटीरियर पेंट में यूज करेंगे तो? नहीं करेगा, बिकॉज बेसिकली यू विल गेट इट इन इमल्सिफाइड फॉर्म. तो दे हैव बाय एडिंग इमल्सिफायर्स, जैसे मैंने अभी बताया था कि 10 रुपए के प्रोडक्ट में मैंने सुना है. राइट. हाँ, तो बिकॉज ऑफ द इमल्सिफायर्स इट हैज बिकम वाटर कंपैटिबल, तो इट विल नॉट गिव वाटर रिपेलेंसी इन एनी वे. और दूसरा आपने जो बताया एंटी सेटलिंग एजेंट का, जो आपने वाटर और घी का आपने एग्जांपल दिया, तो उससे विस्कोसिटी बढ़ जाती है क्या? विस्कोसिटी बढ़ जाती है पेंट की? यस, दिस रियोलॉजी मॉडिफायर, इसीलिए तो उनका दूसरा नाम थिकनर है. राइट. सो थिकनर का हमको परसेंटेज कम करना पड़ेगा एंटी सेटलिंग यूज करेंगे तो एजेंट? कितना यूज कर रहे हैं? या अप्रोक्सीमेटली 3 to 4% नाइट्रोसोल. काफी नहीं, you are talking about water system. Water based. नहीं, these products which we spoke about, anti-settling basically is terminology and this thing used in your solvent system. Not for the water system. नहीं, anti-settling similar parallelly goes there as a dispersing. उसको बोलते हैं dispersing agents. So dispersing और leveling agent जो हम लोग use करते हैं, wetting agent, that is enough for us, right? Yes. Okay. Dispersing agent, wetting agent, and your HEC, CMC, and your thickeners. Okay. Thank you, sir. Thank you. Welcome. So Dr. Gaurav Srivastava want to ask something. Dr. Gaurav Srivastava. हाँ डॉक्टर साहब बोलिए. सर कैसे हैं आप? सबसे पहले बढ़िया. आप पूछ रहे कुछ बताइए ना, आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए, सवाल नहीं चाहिए. नहीं सर, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छी चीज थी. मैंने बहुत सारी चीजें नोट डाउन भी की आपकी प्रेजेंटेशन से. थैंक यू. मेरा सर एक डिफॉर्मर से रिलेटेड, हम बहुत टाइम से एक टर्म सुनते आ रहे हैं, पॉलीमर बेस्ड डिफॉर्मर्स. हाँ जी. So how they are, means how you are position them according to efficiency with mineral oils and siloxane oils? Polymer based deformers, yes, they are good deformers. As far as deforming is concerned, they can be at par or they can be better also in deforming. उसमें अगर आप का एक्टिव कंटेंट अगर पॉलीएस्टर या पॉलीईथर टाइप का है, तो उनका एक ड्रॉबैक ये है कि दे आर नॉट टेम्परेचर रेजिस्टेंट. अगर टेम्परेचर ज्यादा चला जाए तो उसकी डिफॉर्मिंग कम हो जाती है. ये एक ड्रॉबैक होता है जहां पॉलीईथर या पॉलीएस्टर से डिफॉर्मिंग कर रहे हो. दैट इज माय ऑब्जर्वेशन. आई हैव नॉट रेड एनी डॉक्यूमेंट अबाउट इट, मगर मैंने जो पर्सनल ट्रायल्स लिए हैं तो उसमें ये मुझे वेरी क्लियरली दिखा है कि अगर पेंट का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो डिफॉर्मर काम करना कम कर देता है. वरना दे कैन बी वेरी गुड डिफॉर्मर्स. They're wonderful. Actually, to take it further, there is a new class of deformers coming in. अभी तक popular नहीं हुए हैं, but they are coming in, which are with a different surface chemistry, surfactant technology. एक बार फोन कीजिए, लंबा डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में. Okay. बाकी लोग पक जाएंगे क्योंकि ये थ्योरी है. ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में अच्छे से नहीं, जस्ट क्योंकि ये एक पॉइंट थोड़ा सा इसमें नहीं था, आपने जो डिफॉर्मर वाला नहीं, I have tried to cover the common one. Yes. There are many common deformers. And second one is on by itself can be used as a deformer. Yes, definitely. And in sugar industry, your
टर्की रेड ऑयल इज यूज्ड एज अ डिफॉर्मर. यस, काफी अलग अलग चीजें हैं. जी जी. एंड सेकंड वन इज ऑन रियोलॉजी वंस. हाँ जी, हाँ जी, कहिए. सर इसमें आपने जितने भी प्रोडक्ट्स अभी तक रियोलॉजी मॉडिफाई के लिए बताए हमको, इसमें सर आपने कहीं भी सिलिका का जिक्र नहीं किया. फ्यूम सिलिका का कहीं भी जिक्र नहीं आया. वो किस कैटेगरी में आएगा? That will also come in your rheology modifier only. Rather, basically वो inert product है, बहुत लाइट वेट है, इसलिए वॉल्यूम ज्यादा है. तो it will actually form a third category of forming your bulk. It will be something like a high volume extender. ओके. क्योंकि सर आपने इसमें मैकेनिज्म के बेसिस पे किया था. मैं जस्ट मैकेनिज्म के बेसिस पे पूछना चाह रहा हूँ कि ये दोनों मैकेनिज्म पे नहीं बैठेगा. ये तीसरा ही मैकेनिज्म हो गया बाय इंक्रीजिंग द एक्चुअल क्या बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रोड कहा जा सकता है सर. डज इट? यू विल नो बेटर. मुझे नहीं लगता उसमें कोई चार्ज है. बहुत इनर्ट प्रोडक्ट है वो. नहीं वो तो सर मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स आते हैं सर. मॉडिफाइड होंगे तो हाँ काम कर सकता है इलस्ट्रेटेड काम. गुरुराज सर. हाँ जी, बंसल बोल रहा हूँ. डॉक्टर अनिल बंसल सर पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन. नमस्कार. नमस्कार. मैं थोड़ा ऐड करूं सर. ये जो पूछा गौरव सर ने, प्लीज. हाँ जी. ये जो फ्यूम सिलिका होता है जनरली क्या होता है, कहीं पे ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी होता है जहाँ पे भी थिकनिंग का जरूरत पड़ता है कई बार. तो वहाँ पे भी एक्चुअली फ्यूम सिलिका लोग यूज करते हैं. राइट. जहाँ ट्रांसपेरेंट रहता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी अदरवाइज डिस्टर्ब हो जाता है बाकी थिकनेस में कई बार. तो रियोलॉजी मॉडिफायर में फ्यूम सिलिका यूज होता है. ग्रीसेस में फ्यूम सिलिका यूज होता है बहुत जगह. तो और कई जगह मैटिंग के साथ साथ भी उसको एज ए रियोलॉजी मॉडिफायर यूज करते हैं. Exactly. In your clear coats and all, fume silica will be ideal. Yes. Yes. गौरव जी, आप कुछ बताइए ना फ्यूम सिलिका के बारे में. You must have your own experience. सर सिलिका एक बहुत वास्ट टॉपिक है. इसमें लोग क्वेश्चन पूछने के लिए बैठे होंगे. सो मेरा यही है कि सिलिका की एक अपनी अलग कैटेगरी है. इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन जनरली होता है. सब्जेक्ट मिल गया. एंड वन मोर थिंग, जस्ट मैं थोड़ा सा इलेबोरेट आपका जो व्यू है ना उसको थोड़ा सा कर देता हूँ. जो अभी लास्ट क्वेश्चन था ना रंगनाथ साहब का, जो एक्टिव कंटेंट ऑफ पॉलीसिलॉक्सेन या सिलिकॉन की बात हो रही थी. सर सिलॉक्सेन और पॉलीसिलॉक्सेन में जो नंबर ऑफ पॉलीमर रिपीट होते हैं ना, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है. जो मोनोमर यूनिट रिपीट होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है. तो सम टाइम लो एक्टिव कंटेंट का जो आपका पॉलीसिलॉक्सेन होगा वो आपको 100% वाले से भी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है. सो परफॉर्मेंस जो है वो इस बात पे डिपेंड करती है उसके अंदर नंबर ऑफ रिपीटिव यूनिट्स कितनी लगी है. जनरली ये 300 से लेके 550 के बीच में होती है नंबर ऑफ रिपीटिव यूनिट्स. यस चेन एक्सटेंडर्स. सो जो आपको सजेशंस आते हैं वो उसी बेसिस पर आते हैं. जितना ज्यादा इनकॉम्पिटेबल डिफॉर्मर होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ही ज्यादा होगा. सो अपनी टेक्निकल डेटा सीट में इनकॉम्पिटेबिलिटी को चेक करिए कि कितनी इनकॉम्पिटेबिलिटी है. जितना इनकॉम्पिटेबल सिस्टम में हो गया उतना अच्छा डिफॉर्मर हो जाएगा. पर साथ ही साथ में पिन होल आने के चांसेस भी उतने ज्यादा हो जाएंगे. सो दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए बैलेंस आउट करना पड़ेगा आपको. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. सर बात करेंगे डिटेल में बाद में. जी क्या गुरुराज सर. हाँ जी अनिल जी बोलिए. सर दिस इज अ नाइस प्रेजेंटेशन एक्चुअली. मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, जैसे अभी पीएच स्टेबलाइजर आपने बताया, तो उसमें क्या होता है कि अगर पहले तो उसका डोसेज कितना रहता होगा रफली? बहुत ज्यादा नहीं, 0.2 तक मैक्सिमम जाता है. 0.15 to 0.2. दूसरा मैं ये पूछा, ऐसे पीएच स्टेबलाइजर का विस्कोसिटी के साथ भी कोई रिलेशन होता है क्या कई बार? नॉट रियली. नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग एक सिस्टम में जैसे AMP 95 का डिस्कशन आया था अभी, इसलिए मैंने पूछा. कई बार क्या होता है कि जैसे इसमें नहीं था, पेंट रिलेटेड नहीं था, हम लोग मिनरल का स्लरी जैसे बनाते थे, तो उसमें क्या रहता था कि एक डिस्पर्सिंग एजेंट से पर्टिकुलर लेवल तक विस्कोसिटी डाउन होता था. उसके बाद में वो स्टेबल नहीं होता था, विस्कोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाता था. तो दैट टाइम हम AMP 95 भी कुछ यूज करते थे थोड़ा. तो मतलब इसलिए मैं पूछा कि पीएच स्टेबलाइजर का भी कुछ रिलेशन रहता है क्या उसके साथ? डायरेक्टली तो नहीं,
pH stabilizer has absolutely nothing to do with your viscosity, either pick up or drop at that moment. Yes, but it can prevent the changes in your viscosity that can be happening because of your pH changes. और एक लास्ट था मेरा कि पीएच स्टेबलाइजर जो रहता है वो दोनों कंडीशन में सेम ही रहता है, अलग अलग? जैसे एसिडिक, सपोज एसिड जनरेट हुआ, जनरली एसिड ही होता है, बेस तो कम ही होता है, बट इन केस कहीं पे चांस है तो दोनों केस में एक ही रहता है या अलग अलग रहता है? नहीं समझा, मतलब आप बोल रहे ज्यादा अल्कलाइन हुआ तो? हाँ, तो भी वो पीएच अल्कलाइन होने वाला सिचुएशन मैंने तो देखा नहीं होता है जनरली। हाँ, नहीं रहता है सर। नहीं, बट not in our industry, but there are certain industries where acidic pH is required, and there are acidic pH buffers also available. So that time we have to use the different one. It's a different chemistry. Okay sir, thank you. Anybody else want to ask anything? डॉक्टर साहब, मैं इसमें जरा एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, जो अभी डॉक्टर अनिल बंसल जी ने पूछा कि AMP95 जब वो यूज कर रहे थे, जब भी आप डिस्पर्शन करते हैं तो जो कुछ पिगमेंट का जो या फिलर्स के जो नेचर होता है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो ऐसा कोई भी न्यूट्रलाइजर जो हीट को रेजिस्ट कर सके, स्लरी बनाने के टाइम में, ग्राइंडिंग के टाइम में, वो माइक्रो डिस्पर्सेंट जैसा भी काम करता है। इस वजह से उसमें स्टेबिलिटी अच्छी आती है सिस्टम में। अगर आप फिलर के बेसिस में बात करते हैं तो फिलर के बेसिस में अगर आप डोज अपनी 0.1% रखते हैं तो उसका 68% जो है वो फिलर के सिस्टम पर एब्जॉर्ब हो जाता है, फिलर के सरफेस के ऊपर। इसकी वजह से आपको जो डिस्पर्शन के लिए जो वेटिंग डिस्पर्सिंग एजेंट आप डालते हैं उनको एक्टिवेट होने का ज्यादा चांस मिलता है। सो आपकी ओवरऑल स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है और विस्कोसिटी में स्लाइट रिडक्शन मिलता है आपको। स्लाइट रिडक्शन, और दूसरा क्या स्टेबिलिटी भी थोड़ा मिलता था ऐसे। यस डेफिनेटली, मैं वही कह रहा हूँ कि वो एक्चुअली क्या है, इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल होता है वॉन डर वाल फोर्सेस का एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। वो आप जैसे अपना पीएच ऊपर लेके जाएंगे ना, एसिडिक पीएच में जनरेट नहीं होता है, बेसिक पीएच में ये चीजें जनरेट होती है। तो जैसे पीएच अल्टर करके बेस की तरफ लेके गए तो ये जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली फिलर्स आर ट्रीटेड एज एन एसिडिक नेचर। Wonderfully explained. Yeah, thank you. Anybody else want to ask any question? कोई और पूछना चाहते हैं क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है सर लेकर? ओके, गुरुराज सर, सो नाइस ऑफ यू। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा एंड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके जरिए हम लोगों को मिली है, एंड फ्रॉम गौरव ऑल्सो, डॉक्टर गौरव एंड डॉक्टर बंसल, उन लोगों ने भी काफी हमें आपके साथ मिलकर काफी कुछ बताया है। एंड मैं एक बार फिर से वो जो हमारी परंपरा है उसको ध्यान में रखते हुए सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, एंड आई वांट अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर डॉक्टर गुरुराज मोहित प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बहुत अपना समय हमारे को कीमती दिया और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे को आपने आज यहाँ पे दी है। मनीष जी, चलते चलते मैं डॉक्टर साहब से एक टेक्निकल क्वेरी करना चाहूंगा, अगर आप परमिशन दे तो। अरे सर पूछ लिए सर, हो सकता है आपकी इस बात से कुछ हमें फायदा मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए। सर ये इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड नहीं है, बट मेरी एक जनरल क्वेरी है, अगर आप थोड़ा सा उस पे लाइट ऑन कर दे तो। कोशिश करूंगा। सर हम पीयू डिस्पर्सेंट का बहुत नाम सुनते हैं, डिस्पर्सिंग एजेंट। पीयू केमिस्ट्री का बहुत नाम सुनते हैं कि पीयू डिस्पर्सेंट है ये। ये हाई मॉलिक्यूलर वेट जो पीयू रेजिन्स होते हैं, इनकी रिएक्शन किस स्टेज पे स्टॉप की जाती है कि ये स्टेबल रहे और पीयू डिस्पर्सेंट का काम करे, और क्या इनहिबिटर यूज करते हैं इसमें? काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है एक्चुअली। I'll prefer we discuss this in person. Yeah, sure. I will give you a call. थोड़ा बहुत इसके बारे में ब्रश अप भी करना पड़ेगा। जी। Are not very commonly handled by us. But हाँ, पढ़ा हुआ जरूर है, 2-4 आर्टिकल्स पढ़े हैं इसके बारे में, तो श्योर we'll discuss। थोड़ा बहुत आप हमें सिखा देंगे। नहीं सर, मैं तो आपसे सीखने के लिए बैठा हूँ, मुझे तो आपसे सीखना है। वो डिस्कशन में तो आदान प्रदान होना ही है। जी बिल्कुल।
चलिए सर, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी कुछ नए लोग आज अगर होंगे तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे पेन विजन के व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपने नंबर्स हमारे को इस चैट में भेज दें। हम पेन विजन की तरफ से कोशिश करते जा रहे हैं कि आप तक बेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज आप तक पहुंच पाए इस क्वारंटीन और लॉकडाउन पीरियड के अंदर। जिस कोशिश को हम कर रहे हैं लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों को हमारे सेशंस पसंद आ रहे हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज का एक्सपीरियंस, कुछ लोग कंजूसी कर जाते हैं और कुछ लिख नहीं पाते हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज का जो सेशन है उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस हमारे ग्रुप्स में जरूर लिखें, ताकि और लोगों को भी समझ में आए कि पेन विजन क्या कर रहा है। और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक पॉजिटिव, जो भी आपको अच्छा लगता है वो चीज आप ग्रुप में लिखें, ताकि लोगों को पता लगे कि पेन विजन एक जो बीड़ा उठा के काम कर रहा है उसमें हम कितना सक्सेसफुल हो पाए हैं, और लोगों को भी फायदा मिले और भी लोग हमारे साथ जुड़े। मनीष जी, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप तो एडमिन ओनली है, ग्रुप कैसे अपना बताएंगे? क्या कह रहे गुप्ता जी? सर आपका एडमिन ओनली है आपके ग्रुप, तो हम लोग कैसे कुछ लिख पाएंगे उसमें? मैं समझा नहीं, दोबारा बोले, आवाज आपकी कम आ रही, दोबारा तेज बोले सर। व्हाट्सएप ग्रुप तो आपका एडमिन ओनली है? नहीं, ऐसा नहीं है सर, कोई भी लिख सकता है, ओपन फॉर ऑल है। हाँ लिख सकते हैं ओनली ओपन फॉर ऑल है सर, आप चेक करो सर, ओपन फॉर ऑल है। अच्छा, अभी कर दिया आपने? हाँ करिए सर, बोलिए रंगनाथ सर। मनीष जी, कल एक दो सब्जेक्ट के बारे में मैं एक लिखा था आपको, वो देखिए, वो रिगार्डिंग रॉ मटेरियल, इफ समथिंग कैन बी डन, वी हैव लॉट ऑफ पीपल। चैट में अगर लिखा होगा तो कहीं मिस ना हो गया, आप दोबारा बता दें सर कौन सा टॉपिक आप कहना चाह रहे हैं। Actually, yesterday I said we can have an open forum on the different raw materials which are available. There are a lot of people who are also raw material suppliers. They can throw some light on the kind of products that they have, so that हमको भी मालूम हो जाएगा किसके पास क्या क्या availability है, क्या price range है. So it will help, especially in especially for industries in the south. See, advantage is there for west. आप कहना चाह रहे हैं कि रॉ मटेरियल वालों को सबको इकट्ठा किया जाए, कुछ लोगों को जो इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं, और उसमें आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। सर देखो, ये ना कंपटीशन वाली बात हो जाएगी और रॉ मटेरियल वाले आपस में भिड़ जाएंगे तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। आप मान लीजिए किसी चीज को आप मांग रहे हैं और किसी ने आपको रेट दे दिया कि मान लो 100 रुपए किसी आइटम का रेट दे दिया, उसी टाइम उसका कॉम्पिटिटर बोलेगा नहीं सर 95 में मुझसे ले लो, तो सर वो एक बड़ा अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाएगा। नहीं सर, प्राइस मत दो लेकिन ना उसका डिटेल पूरा आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आई टेल यू, हम लोग कोई डिटेलिंग के लिए हम लोगों ने एक डिटेलिंग करो तो सर उसमें मजा है, बहुत फायदा होगा। अभी पूरा डिटेलिंग हो जाएगा, भले प्राइस वॉर मत करो, प्राइस पर्सनली पूछ लेंगे, ऐसा करके बात। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि हम सभी रॉ मटेरियल वालों को कॉल करें और उनको कहें कि रिसर्च कर रहे हैं, अपने बारे में बताएं। हाँ बताएं, और इस समय बहुत इतने सारे इनिशिएटिव हैं, तो ये भी अपना हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ सर इसके अंदर कुछ समय भी है हमारे पास। जी, मैं कोशिश करता हूँ सर इसको किसी और तरीके से जो आप करना चाह रहे हैं। जी सर 2-4 दिन रुक जाओ, रॉ मटेरियल 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री मिलने वाला है। रेट बता दिया आपने पहले से। जो कल की पोजीशन है, ये तो ऐसा बोल दिए ना कि कल रॉ मटेरियल वाले नहीं आएंगे, ये तो पहला ऐसे स्टेटमेंट दे दिए कि एक के साथ एक फ्री मिलेगा, तो रॉ मटेरियल वाला वैसे डर जाएगा। कल की पोजीशन बड़ी ही दुखदायक है। माइनस में जो चला गया WTI क्रूड जो है वो माइनस में चला गया, और सुबह मुझे पता लगा -$35 चला गया। हाँ, आज का मेन न्यूज़ वही था सर। राती $38 सीगा, खाली ड्रम महंगा है तो क्रूड सस्ता है। सर they are giving money to pick that barrels। तो अभी ये सिचुएशन बहुत खराब है। ये काफी टाइम पहले, आज से 15-20 साल पहले होती थी कि जो अपना माल फेंकते थे वहां से पैसा देते थे माल उठाने का, बट अभी वो पोजीशन बहुत आ चुकी है, खराब आ चुकी है सर। मैं ये समझता हूँ कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आ रहा है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए बड़ा नुकसानदायक काम है। जी रिसाइकिल वालों की वाट लग गई। वही, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट इंडिया के लिए ठीक है इस समय ग्रोथ करने के लिए, इंडिया के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से। I think they should sign 2-year contract with this thing and buy the oil, so that whatever last money is there they can make up in the this thing economy. सर बहुत कुछ हुआ होगा, ये कल रात से लेके अब तक जो प्लेयर्स हैं, बड़े-बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया होगा। सर सारे अंडरग्राउंड टैंक्स फुल हो गए हैं, अभी रखेंगे किधर?
उसी रखने के लिए जगह नहीं है, करके तो दे रहा है वो भी। पेंट भी 1 किलो पे 1 किलो फ्री बिकेगा अभी। सर अब एक ही जगह बची है, जो घर के बर्तन है उनको भी भरते चले जाओ, किसी गिलास में रखो, कटोरी में रखो, चम्मच में भी। सर जिधर को ज्यादा होगा ना सॉल्वेंट मेरे को भेज दो, तेरी जगह संभाल लेना। सर वैसे तो जगह रंजीत सिंह जी मेरे पास भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। सर ये आपका पेंट ऑफिशियल ग्रुप नंबर 3 है, ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेजेस में है सर। अभी मैं चेक कर लेता हूँ सर, अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसको ठीक कर देता हूँ। 2 में तो फ्री है सर, 2 में तो सब फ्री है, सब कर सकते हैं। 3 में नहीं है, ओनली एडमिन कैन सेंड है सर। मैं अभी उसको ठीक कर देता हूँ सर, कहीं पर कुछ अगर गलती हुई होगी तो अभी ठीक है। नहीं गलती नहीं, छूट ध्यान नहीं रहा होगा आपको। हो सकता है सर, अभी ठीक कर देता हूँ सर। हो सकता है मैं तभी वहां पे इंतजार कर रहा था कि लोग मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कहीं पर कुछ मिसिंग हो। मैं भी उस सभी सारे ग्रुप चेक कर लेता हूँ, कहीं पर अगर ऐसा कुछ है तो उसको सबको ठीक करता हूँ। जी ओके सर, वेरी गुड टू मीट यू ऑल टुडे अगेन। और कल के लिए हम लोग आप सबको एक इनविटेशन भी देंगे। आपसे एक राय भी जानना चाहता हूं कि हम लोग इसको ओपन फोरम रखें अभी कुछ दिन, या किसी टेक्निकल टॉपिक पे ही चलते रहें। जैसे हमने येस्टरडे किया था, एक ओपन फोरम था कोविड-19 के ऊपर। इस तरह से हम अलग अलग टॉपिक ले सकते हैं और आप लोग हमारे को टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का हमारा सेशन रहे, उसके लिए आप हमें प्लीज एक बार अपने सजेशन जरूर भेजें। योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। और जो भी सर पेंट इंडस्ट्री में जो स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके ऊपर अगर कुछ आपने एक बार आपने लाइट डाली थी कि कुछ इसके लिए करेंगे। किसका सर? स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जी, उसके लिए आपने लास्ट टाइम था कि हम कुछ करेंगे इसके लिए। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के हैं? मंजीत जी ने बोला था कि वो कोई भी आएगा और आपका ताला डाल के चला जाएगा। नहीं, वो तो मैंने बता ही दिया था सर कि अगर आपको अपनी फैक्ट्री खोलनी है अभी इस लॉकडाउन के दौरान, और आपको लॉकडाउन के दौरान नहीं, नियम और कानून जो गवर्नमेंट के हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, नहीं इन जनरल कह रहे हैं सर या एक लॉकडाउन पीरियड कह रहे हैं? नहीं जनरल में तो सर देखो, पेंट इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री है, हिंदुस्तान है, यहाँ पर सब कुछ चलता है, लेकिन जो नॉर्म्स है अगर उसको फॉलो करने पे आप आएंगे तो उसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस आपको भी आ जाएंगी। तो गवर्नमेंट भी काफी लीनियंसी बरतती है इसके लिए कि आपको सारे नॉर्म्स पूरे ना करने पड़े, बट हाँ जो आपको एक्चुअली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर रहे हैं। बेसिकली जो इजीली पूरे किए जा सकते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हाँ सर, ये बात की जा सकती है। इसमें एक्चुअली मैं और भी 2-4 लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जो भी इन्वॉल्व होते हैं। ये आपका टॉपिक में लिख लेता हूँ। आप कंप्लायंस की बात कर रहे हैं ना सर? मैं इस पे सर देखता हूँ जो भी बेस्ट पॉसिबल हो पाता है। जी। और कोई बोलना चाहेगा सर? कोई और टॉपिक पे बात करना चाहेंगे और कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहेंगे? अच्छा सर, फायर सेफ्टी के लिए कुछ कीजिए। हाँ सर, फायर सेफ्टी के लिए और स्टैटिक चार्जेस पे हम लोग जरूर काम कर रहे हैं। उस पे बहुत लोगों से बातचीत चल रही है। और दूसरा मटेरियल टेस्टिंग। मटेरियल टेस्टिंग का तो हो चुका है सर हमारा। आप YouTube पे जाए, मटेरियल टेस्टिंग का हम कर चुके हैं। और आप हमारे YouTube चैनल को देखें, हमारी स्टार्टिंग की दूसरी या तीसरी मीटिंग है, उसमें हमने मटेरियल टेस्टिंग का किया था। ओके, थैंक यू। हमारे YouTube चैनल पे बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर एक बार देखें। हर एक मीटिंग की हेडिंग है, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। आप उस मीटिंग को देखें, आपके कई क्वेरीज वहां से आपको मिल जाएंगी और काफी हद तक आपको आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे थे? दीपक कुमार गुप्ता जी। जी नहीं सर। है जी मनीष भाई। सर मैं थोड़ा ये पूछना चाहता हूँ। हेलो, हाँ जी, एक मिनट मिलन भाई, क्या करें? स्टैटिक चार्ज के लिए जो हमारा बात हो रहा था ना। जी। स्टैटिक के लिए जो अपने को करना है ना, उसके लिए मैंने वो भाई साहब से बात करी थी जी। तो वो कुछ नेटिव प्लेस है, तो बोले मैं सिटी में आता हूँ, क्योंकि मेरे पास में बाकी जो भी आपको स्क्रीन शेयरिंग वगैरह चाहिए या जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो मेरे पास में यहाँ पे नहीं है करके। ओके। मैं 2 दिन में सिटी गाँव से आऊंगा रिमोट से, तो मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है सर, आप एक बार उनको देख लो। अगर उनको बोलो, अगर आप सिर्फ हमारे को वैसे ही बताना चाहें, क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं क्या हम स्टैटिक के ऊपर? वो भी हो सकता है। ले सकते, वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बात कर लेता हूँ वापस फिर भी उनसे। और एक बात है कि ठीक है, उनको जूम का लिंक भेज देता हूँ ताकि वो डाउनलोड कर लें। जी।
सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोगों की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कल मैं ये बात सोच भी रहा था जब सैलरी पॉइंट आया था, हम लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनका हम ख्याल रखें। मैंने एक चीज सोची कि हम एटलीस्ट अगर पूरी सैलरी नहीं दे सकते हैं तो उनको ये जरूर पूछते हैं कि तुम्हें कितनी रिक्वायरमेंट है, और जितनी रिक्वायरमेंट है जिनसे उनका घर चल सकता है, जितने पैसों से उनका घर चल सकता है, एटलीस्ट उतना पैसा हम लोग उनको पहुंचा दें। और आजकल नॉर्म्स बहुत सारे हैं, पेटीएम के थ्रू है, बैंक से थ्रू है, काफी चीजों के थ्रू उनको पहुंचा सकते हैं। तो हम अपने जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनका जरूर ख्याल रखें। कल जैसे नीरव भाई भी बोल रहे थे और बाकी लोग भी बोल रहे थे कि अगर हम अपनी लेबर को, मिलन भाई ने बोला था कि हम अपनी लेबर को अपने साथ जोड़ के रखना चाहते हैं तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट को हम जरूर पूरी करते हुए चलते जाएं। अगर हम उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो कल को हमारे को लेबर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपनी लेबर को आप अपने साथ जोड़ के रखें। यस, नहीं इसमें ऐसा है ना कि जो अपने हाई एंड सैलरी के जो लोग हैं ना, उनके लिए ठीक है कि भैया एक बात आप 50% वगैरह कर दो, बाकी लेबर की पगार तो क्या 15-20 हजार रुपया होती है, उसके अंदर ही उसका घर ही चलना है, उनको को करना ही पड़ता है मिनिमम जो है वो। मिलन भाई उसमें भी ना हम लोग केमिस्ट है या जिनकी ज्यादा पगार है, हाँ उसमें भी एक बात है प्लानिंग कर सकते हैं कैसा करना नहीं, उनको हम ये बात कह सकते हैं कि भाई साहब आपकी जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है आप हमारे को वो बता दो, हम वो आपको पे कर देते हैं। और इस समय मैं समझता हूँ कि जो भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति ये बात को समझ रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी इतना पैसा नहीं है, कोई कुबेर का धन नहीं है कि वो चिराग को घिसेगा और जिन आके उसको पैसा दे जाएगा। अच्छे लेबर नहीं सर, अच्छे लेबर जो है ना वो समझ भी रहे कि हमको घर बैठे पैसा मिल रहा है। हाँ, जो अच्छे लेबर है ना, हाँ, उनको पता है, नॉलेज है इंसानियत, उनको ये भी पता है कि भाई हमको घर पे बैठ के पैसा मिल रहा है, सेठ के पास में हम कोई काम नहीं कर रहे, कुछ भी काम नहीं कर रहे, फिर भी हमको ये पैसा मिल रहा है। बिल्कुल 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 सर। तो वो तो उनको भी थोड़ा सा वो जान पड़ता ही है कि क्या है, वो समझने वाले तो समझते हैं। चलिए सर, आज का हम सेशन यहाँ खत्म करते हैं। अगेन मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा डॉक्टर गुरुराज मोहरेर का। सर आप आज आए, अपना आपने कीमती समय दिया हमारे को, आपने एडिटिव जैसे इतने बढ़िया टॉपिक पर इतना कुछ हमारे को डिटेलिंग के अंदर बताया, सभी लोगों के आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए। सर वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड बाय दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर गौरव, थैंक यू मिलन भाई, थैंक यू डॉक्टर अनिल जी, और सभी लोग जिनको आज फायदा हुआ, जिन्होंने हमें फायदा दिया, जो आज हमारे साथ जुड़े रहे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जय भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। हेलो, थैंक यू सर। थोड़ा एक पूछना था। हाँ जी बोले सर, बोले। सर मैं नया हूँ ग्रुप पे, फर्स्ट टाइम फर्स्ट सेशन आपका अटेंड किया है जी। तो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर सिर्फ अपना नंबर और विजिटिंग कार्ड भेज दें सर। अपना नंबर और विजिटिंग कार्ड भेज दीजिए, और एक अगर आप ज्वाइन करें तो सर अपना 1+6 जो लिखा आ रहा है यहाँ पर अपना नाम लिख दें। अच्छा ये फर्स्ट सेशन था मेरा। कोई बात नहीं सर, क्योंकि हम लोग आज आप पता ही लकीली आप यहाँ पे हैं, वरना हम लोग जितने भी लोग नाम नहीं लिख रहे हैं नहीं कर पाते हैं सर। पर अच्छा हुआ आपसे मिलना था, तो इसलिए आज आप यहाँ पर हैं सर। So nice of you, nice to meet you, nice to talk to you. तो thank you. आप अपना नंबर मुझे भेज दें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या इसी चैट में अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। सर मैंने अपना नंबर भेज दिया है व्हाट्सएप पे, इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है सर। अपना मैंने आपको डाल दिया पर्सनल इस पे। ओके सर, थैंक यू सर। राहुल पवार कृष्णा मिनरल्स के नाम से। ओके सर। और YouTube पे क्या नाम से वीडियो सर्च करने पड़ेगा? पेंट विजन के नाम से। पेंट विजन के नाम से ना। व्हाट्सएप में ऐड होंगे तो अपने आप आते जाएंगे, उसमें भी दिखते जाएंगे। अच्छा, उसमें भी दिख जाएंगे, उसी में सब है। जी सर, आप लोगों का साथ चाहिए पेंट विजन को, आप लोग साथ में हैं तभी कुछ हम कर पा रहे हैं और कर पाएंगे। हम लोग तो फुल साथ में एकदम सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू Manish, thank you. Bye bye everybody. Yeah.